एसआईपी करें या फिर लमसम, या फिर एसआईपी एंड लमसम दोनों? एक ही क्वेश्चन बार बार, एसआईपी या फिर लमसम। आप भी थक चुके होंगे ये सुन के, राइट? ये क्वेश्चन एवरीबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है या लमसम कर दूं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर लोग गलत आंसर देते हैं या फिर उनका वर्डिक्ट सबके सिचुएशन के साथ फिट नहीं बैठता। कुछ लोग बोलते हैं एसआईपी बेस्ट है किसी भी सिचुएशन में बिकॉज ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, लमसम अच्छा है। ओवर very long period, deploying a lump sum can statistically outperform SIPs because the money is exposed to the market growth for a longer period of time. Actually में देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है मेरे ख्याल से। SIP और lump sum, I mean that's an invalid question because it is not about the best choice from these two. It is more about the individual profile. Now, what do we mean by profile? One's income profile and risk appetite of the investor. Investors are provided with these two choices as how they can invest in the securities market. Simple. These are not separate investment products, right? These are not products. The underlying product is equity, debt, right? Or other asset classes, but not SIP. Or these are just medium of how you invest, through which you invest. These are just methods, right? मैं आपको आज वो डेटा दिखाऊंगा जिसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपने क्लाइंट से टिपिकली नहीं बताते, उनके साथ डिस्कस नहीं करते कि एग्जैक्टली कब एसआईपी बेटर है और कब लमसम ने एसआईपी को ऑलमोस्ट 3x आउट परफॉर्म किया है। द मैथ डज नॉट लाई, राइट? चलिए देखते हैं, लेट्स डाइव इन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम जानेंगे कि एसआईपी है क्या। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसआईपी? एसआईपी इज सिंपली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट every month, regardless of market level, market cycle, whatever happens, you invest every month through, whichever way you like it to be paid. Objective is to make the investors disciplined and invest regularly from your monthly income. SIP make complete sense for the investors with income certainty. The one who knows that every month I'll get this particular amount as an income, SIP works best for them. जैसे कि salary income, for example. Now, what is lump sum? One-time bulk investment. You time the market, right? Or you don't. Objective may not be always to time the market in most of the cases, except smart investors. They know they sometimes play the cyclical game. A reason for lump sum investment can be the availability of investable surplus in various times, not in a particular, determined time planning as per your plan, but not regularly, sometime. दोनों का गोल एक ही है, वेल्थ बिल्ड करना, इन्वेस्ट करना, सेव करना, बट रूट बिल्कुल अलग है। द फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, इवन द रूट आर सेम, राइट? अब देखते हैं वेरियस मार्केट कंडीशंस में एसआईपी एंड लम्प सम कैसे काम करती है, हाउ दे बिहेव एक्चुअली इन वेरियस मार्केट साइकिल्स। तो पहला सिनेरियो में देखते हैं 1,20,000 इन्वेस्टेड जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक देखते हैं। लम्प सम आपने जनवरी 2020 बिफोर कोविड क्रैश आपने किया होता तो you would have lost 35% by March and recovered by December 2021. Final value आपका बनता 1,68,000. अब देखते हैं SIP 10,000 per month for 12 months. Bought at various price points, right? Average cost you lowered because the shortfall in the market. Final value 1,72,000. तो बुल मार्केट में अगर आप देखोगे दोनों रफली सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं जब मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, ऑलमोस्ट सेम। बट इन द क्रैश टेस्ट where it gets really interesting. अब सिनेरियो देखते हैं 1,20,000 same amount invested between January 27 to December 2009, the period of global financial crisis. Lump sum January 2007 में lost 55% by early 2009, took 4 years to recover, and final value end of that particular period 72,000 at the end of 2009. Now SIP में 10,000 per month, bought at higher prices in 2007 and at lower prices during the crash in late 2008 and on. Average costing much lower, and the final value is 1,18,000 in the same period. So आपने क्या देखा, SIP ने लमसम को ह्यूमिलिएट किया क्रैश में। मतलब डाउन मार्केट में, बेयर मार्केट में हमेशा कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग काम आता है, SIP काम करता है। अभी देखते हैं व्हाट इज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये जब सब बोलते रहते हैं, इसका मेन फीचर ये है कि मार्केट नीचे जाता है तो क्या होता है, आपको ज्यादा यूनिट्स म्यूचुअल फंड के आप खरीद सकते हो, स्टॉक्स के खरीद सकते हो, राइट? क्योंकि मार्केट नीचे जाता है तो सस्ता हो जाता है यूनिट।
मार्केट ऊपर जाता है तो आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है, भले आप कम खरीद पाते हो यूनिट, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी खरीद रखा है उसका वैल्यू भी तो बढ़ता है। सो बोथ सिचुएशन वर्क्स फॉर यू थ्रू एसआईपी, नेवर अगेंस्ट यू। द हाइब्रिड स्ट्रेटजी अभी देखते हैं। टाइम टू आंसर द मेन क्वेश्चन नाउ, एसआईपी और लमसम थ्रू दिस हाइब्रिड स्ट्रेटजी। अगर आप देखोगे ना, फाइनल वर्डिक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स डोंट डिबेट एसआईपी और लमसम, दे यूज बोथ। हाउ? लेट्स से a salaried individual, salary invested through SIP every month, right? Whenever salary comes, SIP, the fund is out through SIP. Bonus, commission earned, the other income, those lump sum amounts are invested through lump sum. अगर आपके पास सडनली 2 लाख रुपए आ जाता है बोनस, फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया आपने, उससे 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए आ गए, या प्रॉपर्टी सेल किया आपने, तो वो जो फंड आता है उसे 3-4 पार्ट में स्प्लिट करें और SPP मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए इन्वेस्ट करें डिफरेंट स्कीम्स में। ये कैसे काम करता है? एसटीपी क्या करता है, आपके फंड को लिक्विड फंड में पार कर देता है और ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता है इक्विटी में एवरी मंथ। तो बेस्ट ऑफ दी बोथ ऑफ दी वर्ल्ड्स, राइट? आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कि 1 करोड़ वाला कैलकुलेटर क्या बोलता है। वेरी इंटरेस्टिंग। एसआईपी आप करते हो 8,000 पर मंथ 20 साल तक एंड 12% आपका रेट ऑफ रिटर्न है, सो 79.95 लाख बनता है। लमसम 8,000 आप मंथली सेव करते हो, नॉट इन्वेस्टेड, सेव फॉर 5 ईयर्स, तो 4.8 लाख हो गया। उसको आप इन्वेस्ट कर देते हो फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, तो 4.8 लाख 12% में 15 ईयर्स इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट बना 26.3 लाख। तो एसआईपी हमेशा जीतता है, हमेशा, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना वो कंपाउंड से मिलती है, टाइमिंग से नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो कंपाउंड रेगुलर मार्केट में जो आप इन्वेस्टेड हो, इट हैज अ सिग्निफिकेंस, राइट? सो वर्डिक्ट, अगर आप सैलरी अर्नर हैं, आपका इनकम अगर सर्टेन है, एसआईपी ऑलवेज विंस, नो डिबेट। लेकिन अगर आपके पास लमसम है तो डेफिनेटली उसे आप लिक्विड फंड में रखें और एसटीपी के जरिए रेगुलर इन्वेस्ट करते रहे। अब नीचे कमेंट करिए, आप करंटली एसआईपी करते हैं या फिर लमसम करते हैं, और क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन। आपके पास अगर लमसम है तो भी आप उसको लिक्विड फंड में रख के उसको रेगुलरली ट्रांसफर करके एज ए एसआईपी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। द ग्रेट डिस्क्लेमर ऑफ ऑल माई वीडियोज, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या किसी भी पर्टिकुलर मेथड का रिकमेंडेशन ये नहीं है, राइट? किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से डिस्कशन करें। प्लीज सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।